Assalamu alaikum students, welcome back to your class of biology. In today's class we are going to learn about the levels of the organization. Let's start our class. In order to understand the various phenomena of the life, biologists study the biological organization at the different levels. Now by the level of organization we mean कि अगर हमने लाइफ को या लाइफ के डिफरेंट फिनोमेना को या लाइफ से रिलेटेड प्रोसेसेस को समझना है तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि किसी भी एनिमल, प्लांट या ह्यूमन बॉडी बनी किस चीज़ से हुई है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क विद अ मशीन, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द मशीन and there is a certain problem in that machine. Let's say there is a problem in a car. So you will open that car and you will start inspecting the different parts inside the car. Only then you will be able to know that whatever the problem is going on with your car. जब तक आपको इंटरनल पार्ट्स का नहीं पता होगा कार के, उस वक्त तक आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्व नहीं कर सकेंगे. इन द सेम वे द लिविंग बॉडी इज़ लाइक अ मशीन. सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस मशीन, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मशीन किन पार्ट से बनी हुई है, किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है और वो चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं. एंड दीज पार्ट्स, स्टडिंग दीज पार्ट्स, इट इज़ कॉल्ड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Subatomic and atomic level. Let me give you an example. For example, you want to make a house. We will start making our house by putting the bricks together. हम एक के साथ एक ईंट जोड़ते जाते हैं और इस तरह से ईंटें मिलकर एक वॉल को कंप्लीट करती हैं. When the different walls they combine together, they form a room. And when we combine the different rooms, they form a house. And when you combine the different house all together, they form a community or a town. In the similar way, in our bodies, the small atoms or the molecules, they are combined together and they form our cells, our tissues. और इस तरह जुड़ते जुड़ते स्मॉलर लेवल से जाते जाते हायर लेवल की तरफ हमारी पूरी बॉडी को अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट लेवल, दैट इज़ सब एटॉमिक लेवल. ये सबसे छोटा लेवल होता है. All types of matter are made up of elements and each element contains a single kind of atom. In this level we read basically about the elements and about the atoms. You know, there are 92 elements that are found in our nature or in the universe or on our earth. And out of these 92, 16 are called bioelements because they take part in making the body mass of all the living organisms. These take part in making the body mass of a living organism. Out of these bioelements, only 6 make 99% of the total mass. Other 10, potassium and then so on, collectively make 1% of the total mass. So basically नेचर के अंदर 92 एलिमेंट्स होते हैं और आपको पता है कि 92 के 92 एलिमेंट्स दे आर फाउंड इनसाइड आवर बॉडी एज वेल. लेकिन इन 92 एलिमेंट्स में से 16 ऐसे हैं जिनको बायो एलिमेंट कहा जाता है. उनमें से 16 में से 6 एलिमेंट्स हमारी बॉडी का 99% हमारी बॉडी उससे बनी हुई है और अदर 10 दे मेक द 1% ऑफ आवर टोटल मास. Recalling. I hope all of you remember the structure of the atom. It says that the structure of the atom, the protons and the neutrons, they are found inside the nucleus. And then there are smaller particles, they are called electrons. They keep revolving outside of the nucleus. और ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ये चीज़ डिसाइड करती है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं कि कोई एटम दूसरे एटम के साथ किस तरह से कंबाइन होगा या किस तरह से रिएक्ट करेगा. The second level is the molecular level. In molecular level we are going to learn कि जो हमने अभी पढ़ा है कि बायो एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी हुई है. These बायो एलिमेंट्स या जो इनके एटम्स होते हैं वो अलग अलग हमारी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि दे आर कंबाइंड विद ईच अदर. और आपको पता है कि जिस वक्त एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके कंबाइन होने से मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. So these bio elements or the atoms of these bio elements they combine together and they form biomolecules. मॉलिक्यूल जो होता है उसका साइज़ एटम से बड़ा होता है
एटम्स के कंबाइन होने से जिस वक्त मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ टाइप्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एज द नेम इज़ टेलिंग, माइक्रो मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसमें आता है ग्लूकोज एंड वाटर। दीज आर द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सो दे कैन ईजिली एंटर इन योर सेल। और कुछ मॉलिक्यूल्स लार्ज साइज़ के होते हैं जिन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो मीन लार्जर इन साइज़। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, स्टार्च शुगर की ही एक फॉर्म होती है लेकिन शुगर से बड़ा मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन एंड लिपिड, लिपिड्स मीन फैट्स। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। बायो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जिस वक्त जुड़ जाते हैं तो उनके जुड़ने से ऑर्गेनेलीज बनती हैं। ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ सेल्स। द पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर। सब सेलुलर का मतलब सेल से छोटे या सेल के अंदर मौजूद पार्टिकल्स। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेसिफाइड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। आपके सेल के अंदर मौजूद हर ऑर्गेनेली का करने के लिए एक अपना ख़ास काम होता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। Another term is used here, it is called prokaryotes. Prokaryotes are basically very very small sized cells. वैसे तो सेल जितने भी होते हैं they are very small in size, but prokaryotes के सेल extra small होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ये इतने स्मॉल होते हैं कि एक नॉर्मल सेल के अंदर न्यूक्लियस आने की जगह होती है, बट इन प्रोकैरियोट्स देयर इज़ नो प्लेस इवन फॉर द न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोट से बड़े जो सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ द यूकैरियोटिक सेल एंड द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। Then the tissue level, different kinds of cells they combine together and they form tissue. There are different kinds of tissues in our body. For example, muscle tissue, ground tissue, epidermal tissue, blood tissue, bone tissue. Tissues are formed when the same kind of cells combine together. Please keep it in mind कि टिश्यू उस वक्त बनते हैं जिस वक्त एक ही जैसे सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मसल टिश्यू जो हैं उन सारों मसल टिश्यू के अंदर मसल्स के सेल हैं एंड दो सेल्स दे लुक लाइक ईच अदर और सारे एक ही तरीके से काम करते हैं। द नेक्स्ट लेवल इज़ द ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम। नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। अब डिफरेंट टिश्यूज़ जिस वक्त आपस में एक दूसरे के साथ अटैच एंड कंबाइन हो जाएंगे एंड व्हेन दे विल वर्क टुगेदर दे विल फॉर्म एन ऑर्गन। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हार्ट। इन अवर हार्ट देयर आर नर्व टिश्यू जो कि आपके ब्रेन में मैसेज लेके जाते हैं। देयर आर ब्लड टिश्यूज़, देयर आर कार्डियक टिश्यूज़ जो आपके हार्ट को बीट करने में हेल्प करते हैं। So organ is formed when different tissues are combined together. The example that is given here is the example of the stomach. In stomach, two major types of tissues are present: epithelial tissues. एपिथेलियल टिश्यूज़ बेसिकली हैव ग्लैंड्स इन दैम और वो आपके लिए बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल्स को स्टमक के अंदर प्रोड्यूस करते हैं ताकि आपकी प्रोटीन और आपका फैट डाइजेस्ट हो सके। एंड देन देयर आर मस्कुलर टिश्यूज़ जो कि ग्राइंड करते हैं फूड को और फूड को मूव करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। इंडिविजुअल लेवल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अवर body, they form the individual or the living thing, plant, animal, human being, whatever the living thing is. And in living thing all the system they work together with each other, they work in a harmony. For example, if we take the example of our body, you will notice कि हमारी body के अंदर at the same time our heart is beating, we are breathing normally, our intestines, our stomach, they are digesting the food, our brain is working, our brain is busy in thinking, in processing the data that we are receiving from the surrounding. So in this way in the individual body
all the organ system they work together and they support the body of the living organism. Population level is formed when the different living thing, मगर एक ही तरह के living thing they live together. For example, when all the human beings they will live in a certain place, it will call the population of humans. When all the fish in a pond they will live together, it will call the population of fish. So population का मतलब है एक ही तरह के organisms का एक साथ एक habitat के अंदर रहना. Habitat means the area or the environment in which organisms live. Then community बनती है जिस वक्त different populations एक दूसरे के साथ mix हो जाती हैं. For example, if we take the example of the forest, you will notice in a forest all the birds they will form the population of birds, all the insects they will form the population of insects, all the animals, for example deer, they will form the population of deer. When these populations जब वो एक साथ मिलकर रहेंगी different populations, they will form a community. And then come the biosphere level. Biosphere level is जब different communities आपस में एक दूसरे के साथ interact करती हैं और रहती हैं, they form the ecosystem और सारे ecosystem मिलके they form our biosphere.